Hallelujah. Praise the Lord, everybody. It's indeed a great pleasure and a great honor to come before you every time to this medium of YouTube and bless you with the word of God, which the Lord gives me Rhema for every single child of God. Hallelujah. Praise the Lord. So, welcome to Tabernacle Ministry International and the Church of the Rock International. And let us today, this moment, let us go in the Word of God and let us enrich ourselves in the Word and grow strong in the Word of God. हालेलुया। आइए हम दुआ करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए हम हमारे आप को खुद को परमेश्वर के सामने खोल दें। Thank you, Lord, my God. We come before your throne of grace and mercy this moment. Holy Spirit of God, Lord, welcome. We take charge. Every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon these lives, oh Lord. Abandon this trying to consume with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. And beloved Lord, my God, I set the people, Lord, my God, and that house, oh Lord, my God, free. Get out, God, in Jesus' mighty name. And beloved Holy Spirit of God, Lord, welcome, Lord, thou art welcome. Lead us as my prayer unto thee, O Lord, my God. Speak to our hearts. We come to the way we are, but we come to change and become more like you. Thank you for this time that you've given to us. And we vow, Lord, like always, all glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone for every single thing that the Holy Ghost shall do in this place. It is our promise and we will keep it. No man shall have your glory and no flesh shall glory in your presence, O Lord. It is our promise, O Lord. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. 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 Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम हमारे इस नए श्रृंखला को शुरू करें फिर से एक बार, जो हमने पिछले हफ्ते में वो पिछले शनिवार को हमने शुरू किया था। वो था एक मौके के लिए रुके रहना। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, एक मौके के लिए रुके रहना। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक संधीसाठी वाट बघून राहणे। आमेन। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आज हम भाग 3 में है और आइए हम इसका जो मूल वचन है, जो बेस वचन है, वो पढ़ेंगे। आइज़ाया 54 एंड वर्सेस 1 to verse 3। यशाया इसका 54वां अध्याय, 54 अध्याय और वचन 1 से वचन 3। आइज़ाया 54 एंड वर्सेस 1 to verse 3। Sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited. Amen. 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 आइए हम दुआ करें। Thank you, Lord. We come to you the way we are today. Help us, Lord, my God, to discover what's needed to be in us, to fill ourselves up, oh Lord, my God, with what has to go in, Lord, and to become the way you want us to be. Speak to our hearts. We come to the way we are, but we come to get upgraded and change and become more like you. Thank you for changing your word from Logos into Rhema. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. तो हमारा जो ये वचन चल रहा है, और इस वचन में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम मौके के लिए रुके रहते हैं। आज के जिस माहौल में, जहाँ पर कोरोना का जो प्रभाव सब जगह फैल रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई है, और इस ऐसे माहौल में हम करें तो क्या करें? प्रभु यीशु मसीह की जिंदा कलीसिया जो है, वो कैसे आगे जाए? हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, कैसे आगे जाए? मुझे याद दिलाया जा रहा है सुबह से आज, कि शायद कल रात से, कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी ये थी कि इस आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, और वो आ चुका। और उस भविष्यवाणी का भाग 2 ये था कि परमेश्वर के बच्चों को ये आर्थिक संकट या आर्थिक समस्या उनको कोई बाधा नहीं करेगी। और विशेष करके वो उन बच्चों को जिन्होंने अपना दान, अपना दशमांश, अपना पार्टनर्स अमाउंट परमेश्वर के भंडारों में लाया है। आमेन। तो विशेष करके जिन लोगों ने अपना दान, दशमांश और अपना जो पार्टनर्स अमाउंट है, हॉल रेंट है, जो भी आपके कलीसियाओं में, आप अपने कलीसिया में किधर भी आपने अगर विश्वासु तरीके से आपने बोया है, तो इन समयों में आप उस अधिकार से मांग सकते हैं, और परमेश्वर आपको वो सारी चीजें देगा जो भी आप मांग रहे हो।
देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का जो प्रोविजन है या फिर देवाचा जो पुरवठा आहे, हा परिस्थितीला, जो परिस्थिती है उसके उसके अनुसार क्या उसको बोल सकते हैं, उसके अनुसार वो रहता नहीं है। मीन्स परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर आपको देगा ऐसा नहीं है। आपका बोना और आपका जो विश्वास है और आपकी जो मेहनत है उसके अनुसार आपको परमेश्वर देगा। आमीन। उसके अनुसार परमेश्वर आपको उसका उसका प्रावधान करेगा, उसका प्रोविजन करेगा, उसका पुरवठा करेगा। उसके अनुसार त्या अनुसार देव तुमचा पुरवठा करेल। अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने बोया है तो आप उसके लिए क्वालिफाई होते हो। सेकंड, अगर आप उस तरीके से दुआ में हो तो आप उसके लिए क्वालिफाई होते हो। और तीसरी बात, आपकी मेहनत उस तरीके से होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर आशीष का बारिश करेगा। मेरा एक विषय बहुत जल्दी आने वाला है, बारिश हो रही है। मेरा एक विषय बहुत जल्दी आने वाला है, बारिश हो रही है। परमेश्वर आशीष का बारिश करेगा, लेकिन जब बारिश गिरती है तो जमीन के नीचे कुछ तो चाहिए ना, ताकि फल कुछ तो वहां पर उगे। अगर आपने वहां पर कुछ बोया ही नहीं, मैं आपके दान के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपके मेहनत के बारे में कह रहा हूं, मैं आपके जाले डालने के बारे में कह रहा हूं। अगर आपने समुद्र में जाला डाला ही नहीं है तो मछली क्या किधर आके फंसेगी? ये बहुत लोगों के ये गलत फहमी होती है, बहुत मसीह लोगों की गलत फहमी होती है कि बारिश होगी, परमेश्वर की आशीष होगी, बारिश होगी, मुझे बहुत सारी समृद्धि मिलने वाली है। किधर? अगर आपके जिस जमीन के ऊपर परमेश्वर बारिश डालेगा, उधर अगर आपने कुछ बोया ही नहीं है, कुछ मेहनत ही नहीं है, कुछ आपने कोर्स किया नहीं है, आपके पास ऐसे विशेष टैलेंट्स है, गुणवत्ता है, कौशल है, लेकिन उसके ऊपर आपने कुछ मेहनत ही नहीं की है, तो बारिश जब आएगा, मौके की बारिश जब आएगी, तब क्या उगेगा? वहां उगने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अगर वहां पर कुछ है ही नहीं तो उगेगा क्या? तो बहुत बार हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बारिश आएगी, समृद्धि की बारिश आएगी और बहुत मुझे जॉब्स मिलेंगे, बहुत अच्छे बिजनेस होंगे, बहुत अच्छा मुझे ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे। ये गलत है। अगर वहां पर कुछ है ही नहीं, आपने कुछ बोया ही नहीं है, तो उगेगा क्या? खाक उगेगा। हम विश्वासियों की इस बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि अगर हमने समुद्र में जाला डाला ही नहीं है तो हम पकड़ेंगे क्या? ठीक है, क्या काम कर रहे हो? नहीं, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, या फिर मैं कोई स्कूल में मैं एडमिन हूँ, या फिर क्या काम कर रहे हो? जो मैं हॉस्पिटल में कुछ तभी नर्स हूँ या क्लर्क हूँ, या XYZ ऑफिस में कोई क्लर्क का काम कर, अकाउंटेंट हूँ, XYZ जो भी है, या फिर इंजीनियर जो भी XYZ है। लेकिन अगर आपने अगर वो क्वालिफिकेशन किया, प्रेज गॉड, लेकिन जब बारिश आएगी, अगर आपने उसके अलावा कुछ और नहीं किया है तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको समृद्धि नहीं मिलने वाली है। आपके कलीसिया में आपके बाजू वाला भाई, आपके बाजू वाली बहन, अगर उन्होंने कुछ तभी उनके पास कुछ कौशल है और उन्होंने उस कौशल को उन्होंने उस मेहनत के जमीन में बोया है, तो उनकी जब बारिश गिरेगी तब उनको फल मिलेगा, उनका पौधा उगेगा और उनको फल मिलेगा। लेकिन अगर बारिश ही नहीं है तो फिर कुछ फायदा, अगर कुछ अंदर बोया ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, उस बारिश का कुछ फायदा नहीं है। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी है। पतरस जब मछली पकड़ने गया था तब उसने जाला डालता रहा पूरी रात, वो बोता रहा पूरी रात। ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। देखो, पतरस कैसा भी था लेकिन मेहनती था। आज मेरा जो विषय है, एक दूसरे को मेरा उपविषय ये है आज, फिल योर सेल्फ अप विद द राइट स्टफ।
fill yourself up with the right stuff. सही चीजों से खुद को भरो। एक दूसरे को कहो, सही चीजों से खुद को भरो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 2 अध्याय। हम जब जानते, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं क्योंकि टाइम कम है, और हम वचन 1 से वचन 9 में देखने वाले। हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह इस शादी में आया था, और शादी में जब आने के बाद में मरियम उसकी माँ जब आती है उसके पास कहती है कि उनके बाद दाखरस नहीं है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वचन 7 में, एंड जीसस सेड unto them, fill the water pots with water। उन 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 पत्थर के घड़ों को पानी से भरो। इसका मतलब वहां पर 6 पत्थर के घड़े थे, वहां पर 6 घड़े थे, और उनमें लेकिन पानी नहीं था। वहां पर उनमें पानी होना जरूरी था लेकिन पानी नहीं था। आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी है जो है तो सही जगह में भी है और मसीह में भी है, लेकिन उनके अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है, और वो मौके के लिए रुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मौका आपके पास नहीं आने वाला, मौका आपके पास नहीं आने वाला, आपको मौका बनाना है। मेरा विषय का नाम है मौके के लिए रुके रहना, सही मौके के लिए रुके रहना। देखिए, आप मुझे बात बताता हूं, कभी भी मौका है ना आपके पास आता है, वो आता है, लेकिन वो हमेशा नहीं आता है। बहुत बार हमें मौके क्रिएट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। बहुत बार अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो मौका वहां पर आएगा भी नहीं। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, समझ लीजिए। अगर कल्पना कीजिए, अगर आप एक बहुत बेहतरीन खाना बनाने वाले हो, आप अच्छा खाना बनाते हो, आप खुद जानते हो, लेकिन आप में एक पार्ट है, और वो है आलस। आप ये भी जानते हो, आप बेहतरीन कुक भी हो और आप आलसी भी हो, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो, ओके। लेकिन आपको पैसे की भी जरूरत है, आप ये भी जानते हो। तो आप में अंदर 3 गुण है, 3 चीज आपके अंदर है। फर्स्ट, आप एक बेहतरीन कुक हो। सेकंड, आप आलसी हो, और थर्ड, आपको पैसे की जरूरत भी है। तो अभी आपको क्या करना है? आप बोलते हो कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मैंने इसको एप्लीकेशन दिया, उसको एप्लीकेशन दिया है, मैंने वहां पर मेरा रिज्यूमे फॉरवर्ड किया है, सब कुछ आपने किया है, आपने सब जगह आपने रिज्यूमे फॉरवर्ड किया है, लेकिन आप वहां पर घर पे बैठे हो। ऐसा क्या आएगा ना, मुझे कुछ तो मेल आएगा, मुझे कुछ तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, कोई तो मुझे याद करेगा, अरे वो बंदा, ऐसा आप बिहेव करते हो जैसे आप वर्ल्ड फेमस हो। कौन आपको याद करेगा? कौन याद करेगा आपको? क्यों याद करेगा? आपके अंदर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को मालूम है? देखो, एक बात ध्यान में रखिए, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, मैं नाम नहीं लूंगा। एक फलाना पार्टी है आज अपने देश में जो पावर में आई है, और इस पार्टी ने जितनी खुद की प्रोपोगंडा नहीं की, उतनी ज्यादा बदनामी उनके विरोध के लोगों की फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सब जगह। क्यों? क्योंकि उनको पावर में आना था। जितनी खुद की प्रोपोगंडा उन्होंने की, उतना उनके जो विरोधी थे उनकी बदनामी उन्होंने ज्यादा की, उतना ज्यादा करोड़ों रुपया उन्होंने उस बदनामी में डाल दिया। तो अगर आप खुद के बारे में नहीं समझेंगे, खुद ही नहीं समझेंगे, खुद ही उस तरीके से खुद को नहीं ढालेंगे, खुद को चेंज नहीं करेंगे, तो दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा आपके बारे में? तो आप एक बेहतरीन कुक हो, आप आलसी हो, और आपको पैसे की भी जरूरत है। तो अभी आपको क्या चुनना है? आलस चुनना है, या कुकिंग, आपका जो टैलेंट है उसको लेके आपको बोना है? क्या करना है? सोचो, क्या करना है आपको? आप एक अच्छे ब्यूटिशियन हो। अभी कोरोना के टाइम में तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जो सलॉन्स जो चलाते हैं, जो ब्यूटिशियंस चलाते हैं, ब्यूटिशियंस जो होते हैं, उनको बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको सैनिटाइजर्स आपके साथ में लेके जाना है, खुद को सैनिटाइज करना है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स को बार बार सैनिटाइज करना है, और क्या क्या आपको करना पड़ेगा वो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप जानते हो आपके अंदर टैलेंट क्या है।
कोई कोई लोगों को ये भी मालूम नहीं उनके अंदर टैलेंट क्या है, वो ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही बैठे, क्या करें हमको नहीं मालूम क्या करना है, ऐसे ही बैठे हैं बस। तो मेरा सवाल ये है कि करने का क्या, क्या करना है? हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहने का, बोलने का परमेश्वर देगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ आपको उस जमीन के अंदर बोना है? क्या फिल योर सेल्फ अप विद द राइट स्टफ, विद द राइट थिंग्स। पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 आपको यह करना है कि आपको जानना है कि यार मैं खाली पड़ा हूं, यार मेरे अंदर धूल जम रही है। पहले तो एक बात ध्यान में रखो, वचन के पानी के द्वारा, पवित्र आत्मा के पानी के द्वारा खुद को धो लो, खुद को साफ करो। क्लेंस योरसेल्फ, खुद को साफ करो, पवित्र आत्मा के पानी के द्वारा खुद को साफ करके लो। जो धूल जम पड़ी है, जो गलत सलत चीजें आपके अंदर घुसी पड़ी है, इसका ऐसा, उसका वैसा, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ओ परमेश्वर मुझे गाइडेंस दे रहा है, उसके लिए दे रहा है। अरे तेरे को तेरे लिए देगा। ये काम हम भविष्यवक्ताओं का है, जो परमेश्वर ने चुने हुए हैं कलीसिया में, और जो अभिषिक्त है उनको परमेश्वर अगर जरूरत पड़े तो दिखाएगा, लेकिन उनको भी कभी कभी नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के बारे में दिखाना है उसको भी पवित्र आत्मा देखे रखा है। तो उसको पवित्र आत्मा बराबर इल्म करके देगा खुद के बारे में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी के भी बारे में। देखो, मेरा एक हुसूल है दुनिया में, और ये हुसूल से मैं बहुत पक्का जीता हूं, और वो है खुद को बचाओ। आमेन। अगर आप चाहते हो तो मेरे पीछे दोहरा सकते हो, खुद को बचाओ। आमेन। क्या फायदा जगाला सांगे ब्रह्म ज्ञान सत्ता कोरडे पाषाण, इट्स ऑफ नो यूज। दुनिया को भेजे स्वर्ग में और खुद नरक में जाके बैठे, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। पौलुस भी इसके वचन में यही कहता है कि दुनिया को मैंने बचाया, दुनिया को मैंने सुसमाचार बताया और खुद का नुकसान कर लिया, इसलिए यह न हो, इसीलिए मैं खुद के शरीर को अनुशासन में रखता हूं। आमेन। बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या मेरे अंदर क्या है आज? पहली बात तो नकारी चीजें, गलत सलत चीजें को निकालना है। पॉइंट नंबर 2 है कि खुद को धोके रहते रहना है, खुद को वचन के द्वारा धोके रहना है। अभी इस अध्याय में, ये 19 का दूसरा अध्याय है, और वचन 1 से 9 में हम देखते हैं कि जो पत्थर के जो घड़े थे उनमें पानी रखने की जरूरत थी। वो वहां पर यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पानी से भरे रहने की जरूरत थी, लेकिन उनमें पानी नहीं था। वो वहां पर थे, शादी में तो थे, लेकिन वो खाली पड़े थे, धूल से जमे पड़े थे। तो जो चीज आप में होनी चाहिए वो उससे खुद को भर लो। देखो, समय ऐसा आ रहा है कि आज जिसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट्स होंगे, मैं टैलेंट नहीं कह रहा हूं, टैलेंट्स, कौशल नहीं कह रहा हूं, अनेक कौशल रहेंगे, उसको ही जॉब मिलेगा, उसका ही बिजनेस और दौड़ेगा, वो ही सबसे आगे जाएगा। ये अभी जो माहौल है, इस माहौल में एक बात आपको समझनी जरूरी है, जो हौसले से बुलंद है, जो इरादों में बलवान है, और जिसके पास कौशल्य या फिर टैलेंट्स का पोटरी भरा पड़ा है, वो ही इस आगे के दौर में जिंदा रहने वाला है, और वो भी बहुत सारे समृद्धि में, बहुत सारे पैसों में, बहुत सारे आलीशान जो भी है वो उसकी जिंदगी में रहेगा। क्योंकि अभी ये जो कंपटीशन के बाद होने वाला है, ये कंपटीशन आसान नहीं है। हर कोई इंसान अगर है, वो आपका प्रतिद्वंद्वी है, आपका कॉम्पिटिटर है, ये बात समझ लो। ये होने वाला है। देखो, मैं सैनिटाइजर का बिजनेस करता हूँ, हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स में बनाता हूँ, हम बेचते हैं। कोरोना से पहले बहुत कोई सैनिटाइजर को देख नहीं रहा था। मुझे उस दिन एक व्हाट्सएप पे जोक आया, और वो जोक ऐसा था कि सैनिटाइजर ये मेडिकल के घराने का सबसे ऐसा नकारा, ऐसा उनका एक बच्चा था, लेकिन अचानक इतना उसको महत्व आ गया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ भागने लगी है सैनिटाइजर के पास।
तो आप एक बात सोच सकते हैं कि आज हर कोई सैनिटाइजर बना रहा है, हर कोई। क्या है, इथाइल अल्कोहल लेना है, कोई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं, कुछ तो भी डालते हैं और हो गया। लेकिन वो एक बात नहीं जानते, एक बात वो है कि परफेक्शन एंड क्वालिटी, या परफेक्शन एंड क्वालिटी वो ही अंत तक टिकी रहेगी। परफेक्शन एंड क्वालिटी, ये बात वो नहीं जानते। लोगों को क्या है, आज लोग हाथ धो रहे, ये कर रहे, लेकिन एक बात वो भूलते हैं कि 99% वाला जो अल्कोहल से बना हुआ है वही है जो तुम्हें इस कोरोना के इस पूरे जंतुओं से, इस पूरे कीटाणु से दूर रखता है। देखो अभी कैसा है मालूम है क्या, मुझे बहुत लोग बता रहे हैं कि देखो पास्टर ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत लोगों का सेल हो रहा है, अपना इतना नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। रुको, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जाला बिछाते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, क्वालिटी से हटो मत, क्वालिटी से पीछे मत जाओ। क्योंकि जब धूप और बढ़ेगी, जब ये कोरोना और फैलेगा, इसके बाद में देखो लॉकडाउन खुलने के बाद में बहुत फैलने वाला है, बहुत फैलने वाला है, तब लोगों को मालूम पड़ेगा यार ये हमें सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, कुछ फायदे का नहीं है। तो कौन सा है फिर, जो ये कंपनी जो बनाती है वही सही है। उसके लिए हमारा प्रोडक्ट लोगों के पास पहले ही पहुंचना ज़रूरी है, लोगों ने उसको हटा के सस्ता वाला खरीदना ज़रूरी है, उससे उनको फटकी मिलने ज़रूरी है, और उसके बाद में उनको मालूम पड़ेगा ये जो था वो सही था। तो इसके पहले हमें हमारे मेहनत को लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में बोना है। तो आज बहुत सारे सैनिटाइजर लोग बना, कंपटीशन बढ़ गया हमारे लिए, बहुत बढ़ गया। कल ही मैं मेरे दोस्तों से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे यार यार बहुत कचरा हो गया यार, हर कोई सैनिटाइजर बना रहा है, हर कोई सैनिटाइजर बना रहा है। जहां देखो वहां सैनिटाइजर है, किधर भी जाओ ऐसा सैनिटाइजर भरमार पड़ा है कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो सही है, जो खुद को उसमें क्या उसको परफेक्ट बनाता है, वही आखिर तक दौड़ेगा, आखिर तक टिकेगा। आमीन। तो उसी तरीके से आपके लिए भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, लेकिन आपके अंदर जो सही है वो होना जरूरी है। जो क्या है आपके अंदर क्या होना जरूरी है, क्या होना चाहिए। सोचो, मैं कुक हूं, यस वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन मैं आलसी भी हूं, तो आलस होना जरूरी है आपके अंदर? नहीं, तो आलस को निकालो, आलस को निकालो, काम करो खुद के ऊपर काम करो। दिन भर घर में बैठे मत रहो, दिन भर ऐसे ही मत बैठे रहो। अगर कुक हो तो अलग अलग डिशेस की इजाद करो जो कोरोना के बाद लोगों को लगने वाला है। सोचो, परमेश्वर से मांगो, पवित्र आत्मा को बोलो, मांगो कि हे पवित्र आत्मा मुझे दिखा कि आगे के जमाने में समय कैसा रहेगा, लोगों को खाना कैसा चाहिए, कैसा पैकिंग चाहिए, क्या चाहिए, मेरा सेल कैसा बढ़ेगा, मुझे दिखा। अगर आप ब्यूटिशियन हो, अगर आप स्टाइलिस्ट हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप कुछ भी हो, सीए हो, अकाउंटेंट हो, क्या हो, कैसे आगे दुनिया चलेगी, पवित्र आत्मा के पास दुआ में जाके बैठो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको अगुवाई करेगा आगे वाले दिनों के लिए, क्योंकि वही जानता है आगे कैसे दिन रहेंगे। आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। हमारे कलीसिया में परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी एक्यूरेट थी कि आगे वाले दिनों में बहुत बड़ा आर्थिक भूचाल आने वाला है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। पूरी दुनिया में से बहुत दुनिया में पैसा नहीं रहने वाला, और ये हो रहा है। मैंने परमेश्वर से ये बात जरूर कही थी कि मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन कलीसिया को मैं कैसे तैयार करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आर्थिक संकट आ गया है, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं, और बहुत सारे जॉब्स चले गए हैं दुनिया में। अभी मैं जब बाहर जाता हूँ तो अच्छे अच्छे घर के लोग भीख मांग रहे हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम रास्तों पे फिरेंगे, ऐसे घूमेंगे भीख मांगते हुए। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कृपा है हम सब पर कि आज हमारे ऊपर ऐसा वक्त नहीं आया है, और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के अंदर है। ये बात ध्यान में रखिए आप, कभी ऐसा मौका नहीं आने वाला हमारी जिंदगी में। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे पास पैसा भी ना हो,
क्या मैंने कहा? ऐसा भी ना हो कि हमारे पास पैसा भी ना हो। वाह, मैंने शायरी कर ली। ऐसा भी ना हो कि हमारे पास पैसा भी ना हो, नहीं, इन दिनों में हमारे पास सबसे ज्यादा संपत्ति होनी जरूरी है। तभी तो लोग पूछेंगे, यार तेरे में ऐसा क्या है? देखो, हम पैसा हमको क्यों चाहिए? मस्ती मजाक करने के लिए नहीं, दुनिया के ऐशो आराम को हाँ परमेश्वर हमें देगा, लेकिन उसका उसमें ही डूबे रहने के लिए, उसमें ही मजा रहने के लिए, उसके लिए नहीं। ताकि लोग, देखो लोगों का ध्यान किधर होता है? लोगों का ध्यान किधर होता है? जहां पर सुख है, समाधान है, दुनिया कहाँ देखती है? दुनिया आपके अभिषेक को नहीं देखती, उसका दुनिया को आपका अभिषेक समझ में नहीं आता है। दुनिया आपको आपकी आपकी सुरीली आवाज समझ में नहीं आती है। दुनिया को आप कितना अभिषेक में गिरते हो वो समझ में नहीं आता है। दुनिया को क्या आकर्षित करता है? आपका सुख, आपका समाधान, आपकी शांति, आपका पैसा, आपकी समृद्धि, ये दुनिया को आकर्षित करती है। जब आपके पास पैसा आएगा, वो समृद्धि आएगी, आशीष आएगी, इस मुश्किल समय में भी ये सब जब चीजें आएगी, तब दुनिया आपके पास आके पूछेगी, यार ऐसा कैसा क्या? तेरे पास इतने इन मुश्किल दिनों में भी तेरे पास इतनी 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 शांति कैसे क्या? इतनी समाधान कैसे क्या? तेरे पास इतनी सुख कैसा क्या? तेरे पास इतनी समृद्धि कैसे क्या? तो एक के बाद एक गाड़ी ले रहा है, बंगला खड़ा कर रहा है, क्या कैसे क्या? फिर आप कह सकते हो कि देखो भाई, मेरे घर का मालिक मेरा प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए मुझे ये सब है। तब लोगों को समझ में आएगा कि इनका खुदा सिर्फ ऐसे ही नहीं है, जिंदा खुदा है, और मुश्किल समयों में इनको ऊंचा उठाने वाला खुदा और परमेश्वर है। तभी ये दुनिया को मालूम पड़ेगा कि इनका यीशु मसीह कौन है। क्योंकि दुनिया को दुनिया की भाषा ही समझ में आती है। ध्यान में रखिए आप, ये हम जो सुसमाचार बताते हैं ये सही है, लेकिन आज के जमाने को एक नए तरीके से हमको ये समझाना है। बात ध्यान में रखिए, हमें अगर जीना है तो प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए जीना है। तो ये कैसा लगेगा कि हम भीख मांगते घूम रहे, हम हमारे घरों में कुछ भी नहीं है? सोचिए, आइए हम दुआ करें। Thank you, Lord my God, for today's word that you spoke to our hearts. Beloved Lord, I seal this word in the hearts of people, Lord, right now, by the precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Ghost. And every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon these lives, that's trying to take away the word, that steal the word, Lord my God, I have an destroyed and consumed with the fire of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ, and answer the Lord my God. And I said to people, Lord my God, free, get out, God, in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, thou art welcome. Lord, you take charge right now. Just touch these lives, Lord. Transform these lives, Lord my God. Help people, Lord my God, to go at the next level of glory, Lord. And beloved Lord my God, I speak your word of faith. I speak your word, Lord my God, to analyze their own lives. That they will analyze their own lives and they will introspect the Lord my God, and that they will change and be transformed by the cleansing of your word. That they will fill themselves up with the right stuff. I give them in your hands, O Lord, right now. And blessed Lord my God, I bless your people with the blessings mentioned in your word for your people right now, Lord my God. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And let the name of the Lord put upon thee and upon thy children. And the Lord bless thee and thy children. In Jesus' name, I bring your people, Lord my God, their spirit, soul, body, mind, heart, and life, their families, they're going and coming, their job, their businesses, everything, under the covering of the Lord's blood, the Lord's all in the power of the Holy Ghost. In Jesus' name, I pray and I ask, O Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you everybody. और इस अगले भाग के लिए यहाँ पर ऊपर क्लिक कीजिएगा और इस नए सफर में हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इन समयों में हम यशस्वी बाहर आएंगे, जीवित जिंदा बाहर आएंगे, यशस्वी बाहर आएंगे, विजयी बाहर आएंगे और अमीरी से भरपूरी से भरे रहेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। आमेन।